Hello everyone, my name is Dhairya. Hope you all view my last video of class 10 chapter number 3rd, that is pair of linear equation in two variables, and hope you all enjoy it very well. Today I am here to discuss class 10 chapter number 4, that is quadratic equation. Now I am telling what is quadratic equation. So now what is quadratic equation? These are the equations whose highest power of variable is 2, and these equations are only in one variable. So that's why these are called quadratic. Quadratic means is only the 2. I give the example of quadratic equation, that is a quadratic equation in the variable x, that is I also told you that it is only in the variable 1. In the equation of form, ax square plus bx plus c is the equation form. And here highest power of variable is 2, that is ax square plus bx plus c, and a variable is x and highest power of variable is 2. Where a is not equals to 0, मतलब कि a हमारा अगर 0 हो गया तो हमारी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वही 0 हो गया, तो हमारी हाईएस्ट पावर इज 0 because 0 get multiplied by someone, it also gives 0. So it's necessary condition that a is not equals to 0. For example, I write the condition of quadratic equation, that is 2x square plus x minus 300 equals to 0, because in this 2 is not equals to 0. That's why it's a quadratic equation in one variable. And ax square plus bx plus c equals to 0 is the quadratic equation in one variable, and this is the standard form of quadratic equation. Now there are different methods for solving the quadratic equation. How we can solve the different methods of quadratic equation? We can solve the methods. There are different methods, like first method for solving the quadratic equation is a factorization. Second one is the completing square, and third one is the method by discriminant method. In this, all are different types. In factorization, we find the factors of a given equation. By completing square, we get the square root of some number. And by discriminant method, there is a formula for solving the equation, because by factorization and by completing square, we are very difficult for finding the number of non-integral coordinates, whether it is irrational or irrational. Sometimes it get difficulty, but when there is difficulty, then we use the discriminant method. Here I write down all the three methods from which we can solve the quadratic equation by different methods, and very easily we can get the solution. So by first of all, I discuss the factorization method. In quadratic equation by factorization method, what do we do for solution? Here I take the quadratic equation, that is 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. And what is the some special trick for solving the equation? The special trick is, firstly, we get the product and a sum. What is the product and the sum? That is, product is the first and the last term, and sum is the middle one. So we get product is 2 into 1 is 2 and sum is minus 3. So what are the two numbers which give product and a sum like this? We get minus 2 and a minus 1 are the two numbers which give product is 2 and a sum is 3. Because when we add the minus 2 and a minus 1, we get the 3. But when we minus 3, but when we product these two numbers, we get the 2. So this quadratic equation is changed by putting these factors like 2x. This is for ratio 2x square, 2x2 minus, we get factors, so we write down like this, because x के coefficients को change किया हमने, x को break किया हमने -2 और -1 में, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया -2x -1x plus 1 equals to 0. So हमें इस होप कि इसको सॉल्व करना आता होगा. इससे हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इधर से 2x कॉमन लेकर x
इधर से 2x को स्क्वायर है, एक 2x बाहर आ गया तो अंदर आ गया 2x माइनस, इधर से 2x तो चला ही गया बाहर, तो 2x माइनस 1, इधर से माइनस 1x है प्लस 1x। अब इसमें से क्या निकलेगा हमारे पास, 2 and a minus, so we get x equals to 1 by 2 and a 1 by 2. No, this is the factorization method where we find the sum and the product by choosing the factors and by getting the product and a square. क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म को करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो मिडल टर्म है हमारे पास वो सम होती है हमारी, और जब भी इसको करते हैं हमारी प्रोडक्ट और सम को, वी कैन गेट द आंसर. As I told, this is the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0. Then replace a x by alpha, because alpha is a solution. जो हमें फैक्टर्स मिलते हैं उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्फा सेटिस्फाइड द रूट्स, बिकॉज जब भी कोई चीज किसी की इक्वल होती है वो उसके रूट्स को ही सेटिस्फाई करती है. जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, उसमें -2 और -1 थे, तो वो रूट्स जो हमारी 1/2 आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे उसके रूट्स हो जाएंगे जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो दैट्स व्हाई ए अल्फा स्क्वायर वाली इक्वेशन और बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ax square plus bx plus c equals to 0, both are the same equations of linear quadratic. So now the another method for solution of quadratic equation is a completing the square. Means हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें स्क्वायर निकलेगा. जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे फाइंड आउट किया तो हमें फैक्टर्स मिले, वो भी सिंपल में इंटीग्रल फॉर्म में मिले, और इसमें हमें क्या मिलेगा कि स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा. और स्क्वायर जब हटता है, फर्स्टली गेट नो, जब भी स्क्वायर हटता है तो हमें उस डिजिट का प्लस माइनस में आंसर मिलता है. लाइक अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर हटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3 एंड +3. अगर 4 का हटता तो हमें मिलते हैं -2 एंड +2. ये हमारी दो मेन थिंग्स होती है जो हमें पता होना चाहिए. अब हमें क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पे एक इक्वेशन की सिचुएशन दे रखी है कि x - 2x + 4 विच इज इक्वल टू 2x + 1. तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म होगी, x रेज्ड पावर 2 + 2x - 8. जब भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x into x स्क्वायर -4x - 2x that is 2x - 8 which is equals to 2x + 1. Then we get x square - 9 equals to 0. Here we get x square equals to 9. So x square means 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर. So we get two numbers -3 and +3 whose are the quadratic equation के जो मेथड है यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर से. ये हमारे पास थिंग्स आ गई कि ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेंज करना है हमें. कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें डेफिनेटली हमें कोई नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता होगा. So this is thing which we have studied in the completing square. So here is our last method from which we can solve the quadratic equation. So this is a I am solving the quadratic equation formula. So what is quadratic equation formula? I will derive from this equation, as this is the standard form of the quadratic equation that says ax square plus bx plus c. And हमें क्या मिलेगा, हमें इसको डिवाइड कर दिया a से, बिकॉज हमें जब भी फैक्टर्स निकालने होते हैं हमें इसका यूनिटी चाहिए होता है a का, x स्क्वायर का हाईएस्ट पावर का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए. तो इसको यूनिटी मींस 1 होना चाहिए. यूनिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी चीज से ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0. अभी इसको सॉल्व करके दिखा रखा है इन्होंने कि ये जो, फिर हम क्या करते हैं, पहले तो हमने यूनिटी बना लिया हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, फिर हम क्या करते हैं जो उसकी लेस डिग्री होती है उसी के ही कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करते हैं. ऐड सब्ट्रैक्ट एंड अ डबल. सो b बाय 2a का स्क्वायर ही करा, ये ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया. कैसे करते हैं, b बाय a लिया उसका हाफ कर दिया, b बाय a का हाफ करेंगे तो b बाय 2a बन जाएगा, उसी के स्क्वायर को ऐड किया, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया. तो हमारी ये फॉर्म हो गई x प्लस b बाय 2a का
होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए का स्क्वायर। सो हमारे पास ये रूट्स आ गए क्योंकि हमारे पास दो थिंग्स मिल गई, एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए का स्क्वायर, ये बन गई। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये होता है कि जो ये चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी तो एक्स प्लस बी बाई टू ए विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आता है, टू ए इक्वल्स टू जीरो, ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस बी अपॉन टू। सो हमारे पास रूट्स आ गई दिस इक्वेशन के दिस। तो ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड अ डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला आल्सो। अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला एंड द डिस्क्रिमिनेट मेथड। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेट मेथड। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है, जब हमारी ये चीज ग्रेटर देन, ये हमें डिस्क्रिमिनेट कहलाते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बी क्या है, मिडल टर्म, फोर कांस्टेंट है, ए क्या है फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है हमारी कांस्टेंट थी, और अपॉन में टू ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो रियल रूट्स दे रहा है या कौन से रूट्स दे रहा है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमें अलग अलग रूट मिलेंगे, माइनस बी अपॉन टू ए और ये माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्योंकि जब ये वैल्यू देगा एक तो माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा इसके नीचे से, और ये प्लस माइनस है तो मतलब प्लस की वैल्यू भी प्रोवाइड कराएगा हमें और माइनस की नेगेटिव वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमारे टू डिस्टिंक्ट रूट हो गए। नेक्स्ट हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो आ रहा है या टू इक्वल रूट्स, अभी हमने पता करा कि डिस्टिंक्ट रूट्स है बट ये नहीं पता चला कौन से है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब हमारा इक्वल टू जीरो ही आ गया तो एक्स के सेम रूट्स होंगे, माइनस बी बाई टू है एंड माइनस बी बाई टू है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब कि हमारे टू इक्वल रूट्स हुए, माइनस बी बाई टू है ना माइनस बी बाई टू, पहले हमारे थे डिस्टिंक्ट रूट्स अब टू इक्वल रूट्स। अब ये लेस देन जीरो वाला है, लेस देन जीरो में हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है इसलिए हमें कोई रियल रूट नहीं मिलता। तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स कौन कौन से हुए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। Now, to equal roots, b square minus 4ac equals to 0 and a no real roots, b square minus 4ac less than 0. This is called the... So here we get the three types of real roots, no real roots and two distinct real roots. So we get the three types of nature of roots which we have solved by the quadratic equation. At last, I will discuss the whole chapter by the main points, that is, हमें पता है, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब भी किसी चीज का रूट्स हमें मिल जाता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसके रूट से। हमें इसमें तीन मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज द अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन से कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोडक्ट और सम देखना पड़ेगा, उससे हमें उससे मेथड्स निकल जाएंगे, जो हमारी मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी ऐसे ही है कि हमारे पास फैक्टर्स दे रखे होंगे, उसमें फॉर्मूला लगा के उसका किसी नंबर का स्क्वायर अवेलेबल होगा, जो एग्जिस्ट करेगा उसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। अब बात आई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की क्यों यूज पड़ी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए यूज करना पड़ा कि हमें जो वैल्यूज थी, कई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होते, बहुत टफ होते हैं, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स जो नॉन इंटीग्रल होते हैं लाइक रूट्स टाइप के, तो इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पड़ा। Quadratic formula is the formula where minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a equals to 0. And from which quadratic equation से हमें बहुत सारे रूट्स हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे जो है वो नेचर कैसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होता है हमारा टू डिस्टिंक्ट रूट, two equal roots and two real roots. That's all about the chapter number 4.
Please like, share and comment on my YouTube channel, that is High Hopes. Thank you.